था, छोटा सा रिविजन कर लेंगे. What was the principle? We're going to count the flashes, right? कि जब एक रेडियो एक्टिव या एक रेडिएशन जब एक स्किंटलेंट या स्किंटिलेटर मटेरियल पे पड़ता है, इट इज गोइंग टू फ्लोरोस, है ना, उसके जो एटम्स है, दे आर गोइंग टू गेट एक्साइटेड, हायर एनर्जी स्टेट पर जाकर दे गोइंग टू डी एक्साइट, कमिंग बैक टू द ग्राउंड स्टेट, एंड इज गोइंग टू फ्लोरोस. बराबर. फिर वो जो एक फोटोन रिलीज होता है जब वो डी एक्साइट होता है, it will fall on the photocathode. Photocathode में PMT के photocathode पे वो गिरेगा. फिर the diodes are going to amplify and multiply those electrons, and it is going to give me the final result. है ना, यही है ना principle. Okay, मैंने short में बता दिया है. So the intensity of the flashes means each time the amount of fluorescence that the scintillant is going to emit, that is directly proportional to the energy of the radiation. So जितना intense flash होगा, जितना intense वो fluoros होगा, उतना radiation का energy high है. Okay, it means that it's going to provide two kind of information. One is qualitative and one is quantitative. Okay. So what is a scintillant or a scintillator? It is a transparent crystal. Basically, it could be a phosphor or a plastic which is going to contain anthracene. Anthracene क्या है मैंने कल बताया था. Or it could be an organic liquid which is going to fluorose when it is struck by the ionizing radiation. Correct. Some examples of the scintillant: sodium iodide, along with thallium, zinc sulfide, and lithium iodide. These are all your scintillants. जब इन पर रेडिएशन गिरेगा, they are going to fluorose. So this is how it looks like. ठीक है, जब उस पे फ्लोरोसेंस, जब उस पे रेडिएशन गिरता है, it is going to fluorose. ठीक है, फ्लोरोसेंस होगा उसका. अब इसका वर्किंग देखा था हमने. The ionizing radiation is going to enter the scintillator, interact with the material, and is going to ionize it. है ना, तो जो electron है, it will get excited. बराबर. It is going to absorb energy and it is going to reach a higher state. Okay. The excited atoms are going to de-excite at a point of time, and when it de-excites, it is going to emit a photon. And when the photon is emitted, the material is set to fluorose. Now, the light means the photons are going to hit the photocathode of your PMT, photomultiplier tube, and that PMT is going to amplify that photons of electrons and going to give a pulse. So further amplification is done by the diodes, right, of the PMT, and the multiplication is going to continue of the electrons until the electrons are going to reach the last dynode, which is an anode. Okay. Okay, this is your scintillator along with your PMT. So high energy radiation is going to irradiate your scintillant. Sorry, matlab it is going to interact with the scintillant material. It is going to excite the material, atoms of the material here. जब वो excite होकर de-excite होता है, ground state पर आता है, it is going to release a photon, emit a photon. वो photon इस PMT के photocathode पे पड़ेगा. Because of the focusing electrodes, वो electron जो primary electron है, it is going to hit the first dynode. After it hits the first dynode, second, third dynodes पे जाएगा. It is going to get amplified and multiplied, and those electrons are the secondary electrons. The last dynode is an anode. It's a positively charged electrode. Then connector pins will finally give me the result. ठीक है कि कितना radiation है. This was the animation of how exactly it works. So यहाँ से photon आ रहा है red color का, I mean radiation आ रहा है, यहाँ से arrow radiation आ रहा है, and it is going to interact with the scintillant here. Red color जो निकल रहा है वो photon है, तो electron. तो ये focusing electrode है, ये photocathode है, यहाँ से dynode पे जा रहा है, and you can see the arrows are getting thicker, है ना? Okay, types देखे थे हमने solid and liquid counters, ठीक है? So solid scintillation counters are generally used to detect and measure gamma emitters. So the sample is kept adjacent to the crystal, scintillant crystal, ठीक है? तो जो भी sample से radiation आएंगे वो scintillant excite करेंगे, and वो same जो procedure है वो होगा. Liquid scintillation counters are generally used for alpha beta emitters. हेलो मैम. हाँ मैम नुसरत को अलाउ करो ना प्लीज. कौन कौन बोल रहा है? मैम सुमेधा. हाँ बोलो सुमेधा.
मैम मुसरत को अलाउ करो ना लेक्चर में। एक सेकेंड ना। कहाँ है मुसरत? उसको बोलो फिर से ट्राई करने, ज्वाइन करने। मैं करती हूँ। ओके मैम। हुई ओके क्या? ओके। नहीं ना? नहीं। नहीं शायद। ज्वाइन होने, मैं करती हूँ उसको। ओके मैम। ओके, ठीक है। तो हम कहाँ थे? हम लिक्विड स्किंटिलेशन काउंटर्स पे थे, बराबर। तो लिक्विड स्किंटिलेशन काउंटर्स में हम लोग जो हमारा सैंपल है, रेडियो एक्टिव सैंपल है, उसको हम एक स्किंटिलेशन कॉकटेल में मिक्स करने वाले हैं। ठीक है। तो उस हम लोग उसको एक स्किंटिलेशन कॉकटेल के साथ मिक्स करेंगे। तो स्किंटिलेशन कॉकटेल में क्या क्या रहने वाला है? there's going to be an aromatic organic solvent रहेगा, जिसके साथ एक या दो स्किंटिलेंट्स रहेंगे, यानी कि जो फ्लोर जो होते हैं वो रहेंगे, एंड प्लस द सर्फेक्टेंट इफ द सैंपल इज एक्वस बेस्ड। ठीक है। तो हम स्किंटिलेशन कॉकटेल के साथ हमारा रेडियो एक्टिव सैंपल मिक्स करेंगे। तो वो सैंपल, सिंस इट्स अ लिक्विड सैंपल, हम उसको कॉकटेल के साथ मिक्स करने वाले हैं। एंड आफ्टर इट मिक्सेस, दो क्या हो जाएगा, जो एनर्जी है सैंपल में से, रेडिएशन एनर्जी है, इट इज गोइंग टू गेट ट्रांसफर टू द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है। वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वो स्किंटिलेंट्स में जाएगा, मटेरियल में जाएगा। फिर वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, फिर डी एक्साइट होगा, एंड द सेम प्रोसेस रिपीट्स ऑल ओवर अगेन। ठीक है। दिस इज व्हाट इज अबाउट योर लिक्विड स्किंटिलेशन काउंटर्स में क्या हो रहा है, एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है, ये वो पिक्चर डिपिक्ट करता है। एप्लीकेशंस देखिए थे, हैंडहेल्ड रेडिएशन सर्वे मीटर्स में यूज होते हैं स्किंटिलेशन काउंटर्स, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग फॉर रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन, मेडिकल इमेजिंग, रेडियोमेट्रिक एसे, न्यूक्लियर सिक्योरिटी एंड न्यूक्लियर प्लांट सेफ्टी। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है। ऑटो रेडियोग्राफी, ये वर्ड कहाँ सुना है, ये टर्म कहाँ सुना है? कोई मुझे बता सकता है? सुना ही होगा, बोलो। ऑटो रेडियोग्राफी कहाँ सुना है? शायद सदर्न ब्लॉटिंग में। सदर्न ब्लॉटिंग में। और कहाँ सुना है? सिर्फ सदर्न ब्लॉटिंग में ऑटो रेडियोग्राफी होता है? सुप्रिया, कहाँ होता है और ऑटो रेडियोग्राफी? जल्दी बोलो। Don't know, ma'am. कहाँ पे? I don't know, ma'am. ओके, एनीबडी एल्स? मैम एक्सरे। एक्सरे। ओके, और? ओके, सो ऑटो रेडियोग्राफी इज बेसिकली अ बायोएनालिटिकल टेक्निक, जिसके यूज से हम रेडियो एक्टिव मटेरियल्स या रेडियो लेबल्ड प्रोब्स को हम लोकेट करेंगे in a particular biological sample by exposure to a photographic emulsion, which is going to form a pattern on the film and will correspond to the location of the radioactive compounds or the bands in the gel or the blot. तो अगर हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग करते हैं या सदर्न ब्लॉटिंग करते हैं, तो हम लोग ब्लॉट करते हैं ना, पूरा रन होने के बाद हम उसको ब्लॉट करते हैं, करेक्ट? सॉरी, ब्लॉट करेंगे उसको नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर, एंड देन वी आर गोइंग टू डू द ऑटो रेडियोग्राफी, जिससे हमें पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर बैंड या पर्टिकुलर वो
बैंड जो है विच इज गोइंग टू बेसिकली इंडिकेट कि वो पर्टिकुलर सीक्वेंस कहाँ पर है, बराबर है ना। वो कैसे होता है, ऑटो रेडियोग्राफी से होता है। सो वी आर गोइंग टू हैव अ रेडियो एक्टिव मटीरियल or radio labeled probes. Radio labeled probes when you're talking about in situ hybridization or northern blotting or southern blotting. ठीक है, and we are going to locate their position कि वो लोग कहाँ पर है, ठीक है। if you're talking about radio labeled probes in the case of the northern or southern blotting, we are going to find out कि हम लोग जब ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं जो रिजल्ट हमको आता है, we can say that this particular बैंड जो है वो कहाँ पर है जेल में, ठीक है। सो वो कैसे होता है, वी आर गोइंग टू लोकेट इट बाय एक्सपोजिंग इट टू द फोटोग्राफिक इमल्शन। सो इट विल फॉर्म अ पैटर्न ऑन द फिल्म, एक फिल्म पे वो पैटर्न फॉर्म करेगा व्हिच इज गोइंग टू करस्पॉन्ड टू द सोल्यूशन ऑफ द रेडियोएक्टिव कंपाउंड और द बैंड्स इन द जेल और द blood. So photographic emulsion क्या होता है, it is a light sensitive colloid, मतलब it is basically like suspensions रहते हैं किसके, AgX crystals के। AgX क्या होता है, silver halide, ठीक है। X is your halide, it could be anything, bromide, chloride, fluoride, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। So your photographic emulsion is basically consisting of your silver halide crystals which are dispersed in gelatin. So it is normally coated onto a substrate like a glass, film, paper or a fabric. तो हम जो यूज करेंगे हम वो फिल्म पे कोटेड यूज करने वाले हैं फोटोग्राफिक इमल्शन, ठीक है। It's a fine suspension of insoluble light sensitive crystals in a colloid solution. The light sensitive component is one or more mixture of silver halide. So थोड़ा डिटेल में बताया मैंने यहाँ पर कि जो तुम्हारे फोटोग्राफिक इमल्शन होता है उसमें सिल्वर हाइलाइड्स होते हैं, ठीक है। इट कुड बी सिल्वर ब्रोमाइड, क्लोराइड और आयोडाइड और फ्लोराइड, ठीक है। The gelatin is used as a permeable binder, okay, allowing processing agents like the developer, fixers, toners, etc. in aqueous solution to enter the colloid without dislodging the crystals, ठीक है। जो भी हम लोग प्रोसेस में यूज करते हैं, डेवलपर यूज करेंगे, फिक्स इमेज फिक्स करने के लिए उस फिल्म पर फिक्सर्स यूज करेंगे, तो वो सारे जो भी लिक्विड्स है इट शुड बी एबल टू एंटर एंड रिएक्ट विद द क्रिस्टल हैलाइड। इसके लिए हम लोग जेलेटिन यूज करते हैं, ओके। तो ऑटो रेडियोग्राफी डिफर्स फ्रॉम द पल्स काउंटिंग टेक्निक्स IC and GMC. तो IC and your GM counters, these are your pulse counting techniques, है ना। इंटरलेशन में भी हम बेसिकली पल्स काउंट करते हैं। So auto radiography is different from that. How it is different? Each crystal of your AX, that is a silver halide, हर एक क्रिस्टल जो है फोटोग्राफिक इमल्शन में इट एक्ट्स एज एन इंडिपेंडेंट डिटेक्टर, ओके। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करते हैं, देयर इज नो पल्स व्हिच इज क्रिएटेड, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स भी नहीं है, है ना। इंस्ट्रूमेंटेशन आल्सो इज कंप्लीटली डिफरेंट बिकॉज़ हियर वी आर गोइंग टू डू फोटोग्राफिक इमल्शंस ऑन अ फिल्म, बराबर। So every silver halide which is present in the photographic emulsion is going to act as an independent detector. It is insulated from the rest of the crystals in a gelatin capsule. तो gelatin का capsule होता है, उसके अंदर है तुम्हारा AgX, ठीक है, तो silver halide. So each crystal will respond to the charge particle by the formation of a latent or a hidden image that is made permanent by the process of development, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे रेडियो लेबल्ड प्रोब्स है, सिंस आर रेडियो लेबल्ड, वो जो प्रोब्स है दे आर गोइंग टू डिसइंटीग्रेट, दे आर गोइंग टू डीके एंड दे आर गोइंग टू एमिट सम रेडिएशन, इट विल रिएक्ट विद माय क्रिस्टल हैलाइड, आई मीन माय सिल्वर हैलाइड के साथ वो रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म एन इमेज। इमेज मतलब ऐसा डॉट बनेगा वो, बट इट इज हिडन, हमको नहीं दिख रहा है वो। It is going to be made permanent on the film and visible on the film by the process of a development. कुछ तो development procedure रहेगा, ठीक है, जिसके बाद वो image permanent उस film रह जाएगी। So to make image visible, the exposed photographic or X-ray film must be submerged in a developing reagent, which is a chemical mixture that is going to convert the silver crystals into metallic silver and darkening the gelatin emulsion. तो जब भी मेरा जो फॉर एग्जांपल मेरा रेडियो लेबल्ड प्रोब है,
it is radio labeled, it is going to disintegrate and decay. वो radiation emit करेगा, it will go and react with my particular since it's radio labeled, वो energy जो radiation है, it will react with the silver crystals, बराबर. And when it is going to be developed, वो जो film है जब मैं उसे develop करूंगी using a developing reagent, वो केमिकल क्या करने वाला है, वो सिल्वर के क्रिस्टल्स को सिल्वर में, मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट करेगा और उस इमेज को, उस स्पॉट को डार्क करेगा. इट्स गोइंग टू मेक इट डार्कर. ठीक है, तो जो इनविजिबल था वो अब विजिबल हो जाएगा डेवलपर डालने के बाद. सो silver nitrate is a highly efficient in the reduction of the silver halide molecules and is used as a component of developer solutions. So basically यहाँ पे तुम्हारे developer में क्या रहता है, silver nitrate रहता है, which is going to convert or reduce the silver crystals into metallic silver, जो actually तुमको dark band देता है. The reaction is then stopped by a fixative agent. मतलब वो color, वो अब वो band जो है या वो इमेज है वो अब विजिबल हो गया है, बट वी नीड टू स्टॉप दैट रिएक्शन. सो वी आर गोइंग टू यूज अ फिक्सेटिव रिएजेंट व्हिच इज गोइंग टू रिमूव एक्सेस ऑफ सिल्वर हाइलाइट फ्रॉम द फिल्म. सो वी कैन ओनली सी कि वो पर्टिकुलर बैंड्स कहाँ पर है या वो स्पॉट्स कहाँ पे है, रेडियो एक्टिव आई मीन हमारे रेडियो लेबल्ड प्रोब्स के या हमारे रेडियो एक्टिव सैंपल एग्जैक्टली कहाँ पर है वो हमें फिल्म में दिखना चाहिए. इसके लिए भी रिमूव एक्सेस ऑफ silver halide. ठीक है, highly radioactive areas like areas with higher concentration of a radioactive drug or with a higher metabolic activity. तो high radioactive areas जो रहेंगे वो ज्यादा से ज्यादा सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल्स को रिड्यूस करेगा, उनके साथ वो रिएक्ट करेगा एंड वो उतनी ही ज्यादा डार्क पैच या डार्क बैंड हमको फिल्म पर देंगे, रिजल्टिंग इन अ हायर ऑप्टिकल डेंसिटी इन द फिल्म. तो जितना रेडियो एक्टिव एरिया रहेगा, अगर मेरा एक ड्रग है, ठीक है, रेडियो लेबल्ड ड्रग है, इफ इट इज गोइंग टू बी वेरी हाईली रेडियो एक्टिव, वहां पे उस पर्टिकुलर जगह पे मुझे बहुत ही ज्यादा डार्क बैंड मिलेगा या डार्क स्पॉट मिलेगा. ओके, सो हायर द रेडियो एक्टिव एरिया, मोर द डार्कर इज द इमेज. The record provided by the photographic emulsion is cumulative and spatially accurate. It provides information on the localization and distribution of radioactivity within a sample. तो मेरा अगर radio labeled probe है, बराबर, that probe is going to go and bind to a complementary DNA sequence. बराबर है ना, हम इसी के लिए तो probes use करते हैं to know when to know my complementary sequence is present or not. तो आई एम गोइंग टू सी कि मेरा जब ये रेडियो लेबल्ड प्रोब है वो जब जाके मेरे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस के साथ बाइंड होता है, वो जो रेडियो लेबल्ड प्रोब है अल्टीमेटली इट इज रेडियो लेबल्ड, रेडियो ट्रेसर है उसमें, इट इज गोइंग टू डिसइंटीग्रेट, करेक्ट. एंड जब मैं उसको फिल्म पर एक्सपोज करती हूँ, आई एम गोइंग टू एक्सपोज इट टू अ फोटोग्राफिक इमल्शन. फोटोग्राफिक इमल्शन में सिल्वर क्रिस्टल्स है. Silver crystal will react with the radioactive part of my sequence, of my DNA sequence, correct? तो जब मैं उस फिल्म को डेवलप करूंगी, उसको फिक्स करूंगी इमेज को, that particular film is going to provide me the exact location of the particular DNA sequence, correct? वो कैसे मुझे मिला DNA sequence? Because I had already labeled it and I had paired it और hybridized किया था with a radio labeled probe. ठीक है, इन द सेम वे इफ देयर इज अ रेडियोएक्टिव सैंपल दैट आई एम स्टडिंग, ओके, अभी हम लोग एक सैंपल के बारे में बात कर रहे हैं. अगर ये मेरा सैंपल है, इसमें दो जगह पे है, देयर आर टू प्लेसेस और टू रीजन्स दैट आर रेडियोएक्टिव. ये बीच का हिस्सा रेडियोएक्टिव नहीं है, ठीक है, सिर्फ मेरे स्टार्ट का पॉइंट और मेरा एंड का पॉइंट, ओनली दीज टू आर रेडियोएक्टिव, बीच का हिस्सा रेडियोएक्टिव नहीं है. मैं जब इसको फोटोग्राफिक इमल्शन फिल्म पर उसको एक्सपोज करूंगी एंड आई डू ऑल ऑफ दिस प्रोसीजर, मुझे बैंड कहाँ मिलेंगे? आई विल गेट डार्कर रीजन्स ओनली एट द स्टार्ट एंड एट द एंड पॉइंट्स, नॉट इन द मिडल, बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव मी द लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओनली ऑफ रेडियो एक्टिविटी. ठीक है, यहाँ पे समझा कि कंफ्यूज हो गए? बोलोगे क्या?
अरे भाई बोलो। Ma'am, please one more time. हाँ, सो इज हैपनिंग हियर, पीछे जाती हूँ। यहाँ तक समझा हम लोग फोटोग्राफिक इमल्शन कर रहे हैं। एक फोटोग्राफिक इमल्शन से हम एक्सपोज, वी आर गोइंग टू एक्सपोज अ रेडियो एक्टिव मटेरियल टू द फोटोग्राफिक इमल्शन। ठीक है, तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटो रेडियोग्राफी इन नॉर्दर्न और इन सदर्न ब्लॉट, ठीक है, तो मैं जहाँ पे जब मैं डीएनए सीक्वेंसेस का पढ़ रही हूँ, मैं जब ब्लॉटिंग करती हूँ, आई एम गोइंग टू एक्सपोज दैट ब्लॉट, दैट नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन टू अ फोटोग्राफिक फिल्म। Okay, the film is going to be coated with photographic emulsion. ठीक है, तो फोटोग्राफिक इमल्शन में क्या होता है, सिल्वर क्रिस्टल्स होते हैं। तो वो सिल्वर क्रिस्टल्स क्या करने वाला है, each crystal is going to respond to the charged particle। यानी मेरा जो अभी सपोज मैंने ब्लॉटिंग किया है एंड आई एम स्टडिंग डीएनए सीक्वेंसेस, ओके, न्यूक्लियोटाइड्स में पढ़ रहा हूँ। I have a radio labeled probe, ये मेरा रेडियो लेबल्ड प्रोब है जो जाके मेरे उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ बाइंड हो रहा है। ओके, दिस बीइंग व्हाट रेडियो लेबल, वो रेडिएशन एमिट करेगा, डीके होगा तो, करेक्ट, तो वो मेरा सिल्वर क्रिस्टल आके इस रेडिएशन के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म एन इमेज which is latent, hidden है, नहीं दिख रहा है फिल्म पर। ओके, तो वो इमेज मुझे देखना है, या मुझे देखना है कि मेरा जो रेडियो लेबल्ड प्रोब है ये पूरे सीक्वेंस में वो कहाँ जाके बाइंड हुआ है, मुझे वो देखना है। सो आई नीड टू डेवलप माई फिल्म, माई एक्सरे फिल्म और माई फोटोग्राफिक फिल्म, आई हैव टू गो एंड डेवलप। तो मैं उसको जाके डेवलप करूंगी। तो जब मैं उसे डेवलप करूंगी, आई एम गोइंग टू यूज सिल्वर नाइट्रेट इन द डेवलपिंग सोल्यूशन। तो सिल्वर नाइट्रेट क्या करेगा, यहाँ पे मेरा डीएनए सीक्वेंस है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस, यहाँ मेरा रेडियोलेबल्ड प्रोब है और यहीं पे आके इसने सिल्वर क्रिस्टल्स ने उसका काम कर दिया। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट इज गोइंग टू रिड्यूस द रिमेनिंग AgX मॉलिक्यूल्स, सिल्वर हैलाइड मॉलिक्यूल्स everywhere else. ठीक है, and it is also going to come and react with the silver crystals that are here at the radio labeled probe और उसको वहां पे मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, my fixative agents are going to remove excess of silver halides from the entire film. ओके, सिल्वर नाइट्रेट जो है वो जाके मेरे रेडियो लेबल्ड प्रोब वाले जो रेडिएशन के साथ जो सिल्वर क्रिस्टल काम रिएक्ट किया हुआ है उसको रेड्यूस करके मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट करेगा। तो आई हैव अ इमेज हियर, बट मेरा जो बाकी का जो फिल्म है वहां पे भी सिल्वर क्रिस्टल्स है। द fixative reagent is going to remove all of that excess of silver halides. ठीक है, now इमेज डेवलप हो गया, फिल्म डेवलप हो गई है मेरी। आफ्टर द फिल्म डेवलप्स मैं क्या देखूंगी कि यहाँ पे जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को रेडियोलेबल्ड प्रोब ने जाके बाइंड किया है या हाइब्रिडाइज हुआ है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी डार्क। अब ये कितना डार्क होगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, मेरा जो रेडियो ट्रेसर है, जो मेरा रेडियो लेबल है या मेरा रेडियो न्यूक्लियाइड जो है वो कितना रेडिएशन कितने इंटेंसिटी से रेडिएट करता है उस पर। Okay, so it is going to give me a darker image agar if it is highly radioactive. This is in case of a radio labeled probes जब हम northern या southern blot करते हैं तब। But what if I am just checking the radioactivity of a normal sample? ठीक है, एक solid sample मैंने लिया हुआ है and मुझे doubt है कि शायद इसमें radioactive contamination है, पत्थर है छोटा सा, ठीक है, and I'm just checking कि whether it is contaminated, radioactive contamination है कि नहीं है। So I'm just going to expose that rock to the photographic emulsion. ठीक है, तो photographic emulsion के साथ मैंने उसको react करवाया and तब क्या होगा, वो मुझे डार्कर या जो डार्क पिक्चर है या डार्क इमेज है या डार्क स्पॉट है वो मुझे कहाँ देगा, जहां पे रेडियो एक्टिविटी है। ये मेरा रॉक है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ यहाँ साइड में ही है, एक इंडेक्स फिंगर पे और एक थंब पर, ठीक है, यहाँ बीच में नहीं है। So I'm going to get the images which are very dark only at my index and at my
thumb, not in the middle. This example justifies this point. It provides information on the localization and distribution of radioactivity within a sample. आगे मैंने पिक्चर्स डाले हैं तो वो और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अब समझा? Yes, ma'am. Thank you. Okay, moving on. The principle, underlying principle क्या है? It is based on the ability of the radioactive substances to expose the photographic plate or film by ionizing it. Of course, है ना? जो मेरा radioactive substance है, it needs to ionize a photographic film. मतलब उस पे जो photographic emulsion है, मेरा radioactive substance का जो radiation है, it is ultimately going to ionize that photographic emulsion. ठीक है? The principle is the precipitation of the silver atom. Silver atom जो है वो result from the ionization of silver halides by the filled samples or the substances. तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा जो सैंपल है, अगर मेरा रेडियो लेबल्ड प्रोब है, ठीक है, उसके साथ जब AGX आके काम रिएक्ट करेगा, तो मेरा जो रेडिएशन रेडियो लेबल्ड प्रोब जो एमिट, इट इज गोइंग टू आयनाइज द सिल्वर क्रिस्टल्स. ठीक है, उसके वजह से, क्योंकि वहां आयनाइजेशन हुआ है, सिल्वर वहां प्रेसिपिटेट हो जाएगा. नाउ ऑटो रेडियोग्राफी के टाइप्स है, 2 मेथड्स है बेसिकली, इन विट्रो एंड इन विवो. तो इन विट्रो में क्या होता है, इन विट्रो में आइसोलेशन ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स सच एज DNA, RNA, प्रोटीन्स और लिपिड्स फॉलोड बाय लेबलिंग विद suitable radioisotope. So we can use autoradiography to study all of these cellular components by directly labeling them with the radioisotopes and exposing them to a photographic emulsion on a photographic plate or a film. Okay. Then in vivo में कैसे होता है, radioisotope filled or radio tracers are there each other and administered orally or via injection, and the distribution of radiation is evaluated in thin tissue or whole body cryosections. तो यहाँ पर वो लोग मॉडल टेस्ट मॉडल ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंजेक्ट करेंगे रेडियो आइसोटोप्स प्लस रेडियो ट्रेसर्स को. तो वो लोग क्या करने वाले हैं, they are going to inject it into the animal and let the radio tracer do its work. और उसके बाद वो लोग एक थिन टिश्यू उस एनिमल का लेके आफ्टर यूथनाइजेशन वो लोग उसको चेक करेंगे. ओके, या तो फुल होल बॉडी का क्रायोसेक्शन देंगे, यानी कि जब यूथनाइजेशन हो जाएगा, they are going to freeze it and then they are going to dissect the model organism, और फुल होल बॉडी का वो लोग ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे. तो they are going to expose the entire test model to the photographic emulsion. ठीक है, वो कैसे क्या है वो अपन आगे देखेंगे. Now, common radioisotopes that are used in autoradiography are 35S sulfur, tritium है, 14 carbon है, 125 and 2P phosphorus, which are used to determine the distribution of the radio-labeled molecules in tissue cells or cellular organelles, but also in the study of protein modifications, DNA, RNA sequencing. Examples बस याद रखना है. ठीक है, अभी this is the one of the pictures, ठीक है, जिसमें ऑटो रेडियोग्राफी किया हुआ है. तो this is the sample that I was talking about. There are only certain places, certain regions that are radioactive. Entire sample is not radioactive. ठीक है, सिर्फ certain regions are radioactive, correct? तो उसका रेडियोएक्टिविटी चेक करना है तो मैं ऑटो रेडियोग्राफी करती हूँ. सैंपल ग्लास स्लाइड पे उसको लूंगी. आई एम गोइंग टू कवर द एंटायर थिंग, फिल और फ्लड द स्लाइड विद द फोटोग्राफिक इमल्शन. मेरी फोटोग्राफी में क्या है, सिल्वर क्रिस्टल्स है, सिल्वर हाइलाइटेड क्रिस्टल्स है ना, AGX है. So I'm going to cover it. I'm going to incubate it for some 1 or 2 days. Okay, because silver crystals are very light sensitive, so I'm going to keep them in the dark, incubate them in the dark. After that, what happens is, जो भी radiation होता है, radioactive part जो है sample का, the red part is the radioactive part, वो decay होगा, correct? वो decay होगा तो वो radiation emit करेगा. That radiation is going to go and react with the silver ions. AGX को ionize करेगा, and that is going to also convert, reduce the activated AGX to AG metal. मतलब जब ये जहाँ पर जो स्टेप हो रहा है, जहाँ पे भी वो आयनाइज होके सिल्वर प्रेसिपिटेट होता है, ये हमको दिखता नहीं है.
वी आर नॉट एट द डेवलपमेंट स्टेज येट. यहाँ पे हम लोग अभी तक डेवलपमेंट में नहीं पहुंचे. ठीक है. डेवलपमेंट कब होगा? जब मैं उसके ऊपर डेवलपर डालूंगी. दिस स्टेप इज दैट आई एम गोइंग टू पुट द डेवलपर व्हिच इज गोइंग टू कंटेन सिल्वर नाइट्रेट. सिल्वर नाइट्रेट डालने पे क्या होगा? वो जो सिल्वर नाइट्रेट है, इट इज गोइंग टू कन्वर्ट माय एजी सिल्वर टू मेटालिक सिल्वर, है ना. तभी जाके ये डार्क हो जाता है रिएक्शन के बाद, एज सुन एज आई पुट डेवलपर. ओके. एंड आई एम गोइंग टू फिक्स इट. एक्टिव एजेंट डालूंगी ताकि जो एक्सेस बाकी सिल्वर है वो सब निकल जाए. ओके. आई एम गोइंग टू वॉश इट अवे. वो सब मैं फिक्सेटर वगैरह से काम वाम करूंगी. एंड देन माइक्रोस्कोप. तो मैं जब उसको ऑब्जर्व करूंगी तो मुझे क्या दिखने वाला है मेरे स्लाइड पर? only certain part of the sample is going to appear dark. ऐसे dark patches दिखते हैं. That particular part is your radioactive part of the sample. ठीक है. और ये जो भी प्रोसेस होता है ये सब अंधेरे में होता है, इन द डार्क. अगर तुमने कभी देखा होगा फोटोग्राफ्स डेवलप जब होते हैं वो लाइट में नहीं होते हैं ना, दे आर ऑलवेज इन डार्क रूम जहाँ पे रेड लाइट होता है. So that's how something similar ऑटोरेडियोग्राफी का प्लेट या फिल्म या स्लाइड का डेवलपमेंट होता है. ठीक है. ये समझा? ये पिक्चर समझा? दिस इज फॉर अ रेडियो एक्टिव सैंपल. ओके. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके. ठीक है. तो ये जस्ट ऐसा मैंने और एक पिक्चर डाला है टू मेक इट इवन मोर क्लियर कि हम लोग एग्जैक्टली कैसे करते हैं. सो वी आर गोइंग टू इंक्यूबेट द सेल्स विद रेडियो एक्टिव. नॉर्मल सेल्स है, ठीक है, हम उसको रेडियो एक्टिव ट्रिशन के साथ उसको यानी 3H के साथ हम लोग उसको इंक्यूबेट करेंगे. वी आर गोइंग टू लाइट द सेल. जो भी उसके अंदर कंटेंट्स है वो स्लाइड पे हम उसको एम्बेड करेंगे, फिक्स करेंगे. ठीक है. वी आर गोइंग टू इमर्स द स्लाइड इन अ रेडियोएक्टिवली सेंसिटिव इमल्शन यानी AGX वाले सोल्यूशन में हम उसको इमर्स करेंगे. फिर हम उसको so after this the slide is dipped in silver bromide emulsion. यही स्टेप है. ठीक है. तो ये यहाँ जो हो रहा है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है इन अ बेटर वे. ठीक है. तो जो भी रेडियो एक्टिव पार्ट है इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद योर सिल्वर आयॉन्स, है ना. AG यहाँ पे क्या यूज किया उन्होंने? सिल्वर ब्रोमाइड यूज किया, तो उसके साथ वो रिएक्ट करेगा. ओके. ठीक है. और फिर मैं डेवलपर डालूंगी तो क्या हो जाएगा? वो जो भी सिल्वर आयॉन्स है वो मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएंगे. एंड देन आफ्टर आई पुट इट इन अ फिक्सेटिव आई एम गोइंग टू वॉश अवे ऑल द एक्सेस ऑफ सिल्वर हाइलाइट्स. सिल्वर ब्रोमाइड जो एक्सेस है मैं उसको वॉश आउट कर दूंगी. एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सपोज इट. ओके. तो उन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट का प्रोसेस बताया हुआ है. ठीक है. तो अल्टीमेटली आई एम टू गेट अ रेडियोग्राफ. ठीक है. ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो. ठीक है. तो अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू गेट अ रेडियोग्राफ. ठीक है. ओके. मेथड्स इन विवो ऑटोरेडियोग्राफी में क्या हो कैसे होता है वो सिंपल स्टेप्स में बताया हुआ है. तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द रेडियोएक्टिव लेबलिंग ऑफ द बायोलॉजिकल सैंपल. प्रीवियस पिक्चर याद करो. ठीक है. तो वहां पे उन्होंने पहले बायोलॉजिकल सैंपल को रेडियोएक्टिव लेबलिंग किया हुआ है. द टाइम, कितना टाइम उसको इंक्यूबेट करना है विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द रेडियो आइसोटोप एंड द रेडियो ट्रेसर मॉलिक्यूल. ठीक है. फिर हम क्या करेंगे? उसको हम इंजेक्ट करेंगे या तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन देंगे लेबोरेटरी एनिमल में. वो हो रहा है यानी वी आर गोइंग टू ट्रेस अ पर्टिकुलर रेडियो एक्टिविटी इन द मॉडल ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो ये जो मैंने यहाँ पर सैंपल बनाया हुआ है आई एम गोइंग टू इंजेक्ट इट और ओरली एडमिनिस्टर इट टू द एनिमल. देन सैंपल प्रिपरेशन में क्या होने वाला है? इधर आई कैन गो विद क्रायोप्रिजर्वेशन. क्रायोप्रिजर्वेशन क्या होता है कोई मुझे बता सकता है? What do you mean by cryopreservation? Preservations at very low temperature, like in liquid nitrogen. Yes, correct. तो जो यूथनाइज एनिमल, यूथनाइजेशन का मतलब क्या होता है या यूथनाइज एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल टॉक्सिसिटी में पढ़ा है ना ये. यूथनाइजेशन, यूथनाइज एनिमल्स क्या होता है? मैम सैक्रिफाइस. एग्जैक्टली क्या होता है उसमें? Sacrificing by putting them in that
chamber in which they will put CO2, something like that. Mm-hmm. So since there will be no oxygen, the animal will die by suffocation. Suffocation. Okay, ठीक है, correct. So we are going to preserve the euthanized animals at very 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 low temperatures. ठीक है, और फिर उसका हम सेक्शन करेंगे, उसको हम डाइसेक्ट करेंगे. तो वो जो सेक्शन रहता है, इट इज कॉल्ड योर क्रायो सेक्शन. ठीक है, इधर वी टेक द होल बॉडी और वी आर गोइंग टू टेक अ टिश्यू सेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, मैंने रेडियो लेबल किया ड्रग को एंड आई एम स्टडिंग फॉर न्यू ड्रग डेवलपमेंट. ठीक है, तो मैं उसमें देखना चाहती हूँ कि मेरा जो ड्रग है वो एग्जैक्टली सिस्टम में जाने के बाद वो कहाँ जाता है. इज इट गोइंग वेर आई इंटेंड इट टू गो. मुझे वो, मैं चाहती हूँ कि वो लिवर में जाके उसका काम करे. तो मुझे चेक करना है कि वो लिवर में जा रहा है कि नहीं. तो आई एम गोइंग टू रेडियो लेबल द ड्रग. ठीक है, करेक्ट. एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू इंजेक्ट इट इनटू द एनिमल. एनिमल में इंजेक्ट कर दिया, तो उसको इथेनाइज कर दिया, क्रायोप्रिजर्वेशन कर दिया. नाउ आई कैन ईदर टेक जस्ट अ सैंपल ऑफ द लिवर या मैं फुल बॉडी का सेक्शन ले सकती हूँ डाइसेक्शन करने के बाद. ठीक है, फॉर माइक्रोस्कोपी इवैल्यूएशन. लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कैन बी यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द एम ऑफ द स्टडी. जब होल बॉडी या टिश्यू सेक्शंस हम लेते हैं, ठीक है, तो हम उसको एक ग्लास स्लाइड पे माउंट करेंगे. टिश्यू सेक्शंस छोटे रहेंगे तो हम उसको ग्लास स्लाइड पे माउंट कर देते हैं. इट इज एम्बेडेड इन द फोटोग्राफिक इमल्शन टू जनरेट अ लैटेंट और अ हिडन इमेज. प्रीवियस पिक्चर स्लाइड उन्होंने इमर्स किया था फोटोग्राफिक इमल्शन में. थोड़े टाइम के लिए हम उसको रखेंगे ताकि जो भी रेडियो लेबल ड्रग जो है वो रेडिएशन एमिट करेगा. इट विल एक्ट विद द सिल्वर हैलाइड. ठीक है, एंड इट विल फॉर्म अ लैटेंट इमेज. ठीक है, आगे हम इमेज डेवलपमेंट में जाएंगे. द इंक्यूबेशन टाइम विल डिपेंड ऑन द रेडियोआइसोटोप. तो फिर हम उसको डेवलपर में डालेंगे where silver nitrate is going to convert your silver crystal into metallic silver. तो वो हमको ब्लैक दिखेगा, पैच दिखेगा. ठीक है, तो कितना टाइम रखना है, that will also depend on the radioisotope which is used. ठीक है, we have to arrest the image development by exposing it to a fixative reagent. फिक्सेटिव रिएजेंट के साथ हम जब उसको एक्सपोज करेंगे या उसको इमर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेस बाकी का जो एक्स्ट्रा सिल्वर हैलाइड है वो सब निकल जाएगा. ठीक है, एंड इमेज विल गेट अरेस्टेड wherever it is. Now, when analyzing histological sections, a counterstaining step can be added to the protocol, like to identify specific tissue structure or cellular components. For example, hematoxylin and eosin staining can be used to define the nucleus and cytoplasm of cells in tissue sections after autoradiographic detection. It's just optional. Okay. So here we are talking about the tissue, liver tissue. ठीक है, वो हमने स्लाइड पे माउंट कर दिया. यहाँ पे कोई प्लेट नहीं है. There is no photographic film like in northern southern blotting का एग्जाम्पल जो मैंने दिया था. यहाँ पे कोई प्लेट नहीं है. मैंने इमल्शन, फोटोग्राफिक इमल्शन डायरेक्टली डाल दिया है मेरे स्लाइड पर, या मेरे स्लाइड को फोटोग्राफिक इमल्शन में, इमल्शन है मतलब इट विल बी समथिंग लाइक लिक्विड ना, थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी टाइप्स रहेगा. यू वांट टू इमर्स इट इन दैट. ठीक है, उसको मैंने इमल्शन में डाला, थोड़े टाइम के लिए रखा, जितना भी टाइम इंक्यूबेशन पीरियड है, इन द डेवलपर, इन द फिक्सेटर. आई एम गोइंग टू डायरेक्टली गो एंड ऑब्जर्व इट अंडर द इलेक्ट्रॉन और इन द लाइट माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो ये मेरा लिवर का टिश्यू. ठीक है, is binding with a protein here at this particular place just above my ring. Okay, when I observe this section under or electron microscope, I'm going to see a dark patch here because the radio labeled drug is like the dark patch here. ठीक है, इन विवो ऑटो रेडियोग्राफी समझा सबको? कोई भी है जिसको नहीं समझा है? किसी को नहीं समझा है तो बोलो, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगी. ओके, सो सॉरी आई डिड नॉट गिव अ डिस्क्लेमर. तो दिस इज अ क्रायो प्रिजर्वेशन किया हुआ है. इट्स अ क्रायो प्रिजर्व्ड होल बॉडी सेक्शन. उन्होंने डाइसेक्ट किया है उसको. ठीक है, ये सेकंड इमेज जो है. ठीक है, तो ये रहा ट्यूमर. ठीक है, दे आर स्टडिंग द ट्यूमर इन दिस पर्टिकुलर केस. ये पेट इमेज है, ये ऑटो रेडियोग्राम है, ये डिजिटल पिक्चर है. तो उन्होंने किया, ये जो ऑर्गेनिज्म है, आई एम अज्यूमिंग इट्स अ माउस.
या माइस है, we say it's a mice, they're studying the tumor over here. but इस माइस में कहीं तो ट्यूमर है, study particular tumor. Okay, तो उन्होंने क्या किया, to study the tumor they're going to use a radioactive sample or they're going to use a radio tracer. ठीक है, वो रेडियो ट्रेसर क्या करेगा, और मे बी और ड्रग, रेडियो लेबल ड्रग, हम अज्यूम करेंगे कि उन्होंने रेडियो लेबल ड्रग जो है उन्होंने उसमें इंजेक्ट किया हुआ है उस माइस के अंदर, तो वो माइस ड्रग क्या करेगा, डायरेक्टली एक्ट ऑन द ट्यूमर. ओके, अब मुझे नहीं ट्यूमर कहाँ है, मैं गोइंग टू अज्यूम कि हमें ये दो इमेजेस नहीं पता, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द डिजिटल पिक्चर. ओके, so I don't know where the tumor is, मुझे नहीं पता, I just blindly injected the drug assuming my detectable drug is going to go and bind with the tumor and act on the tumor. Okay, मैंने किया एनिमल को, क्रायोप्रिजर्वेशन किया उसका, मैंने उसके होल बॉडी सेक्शन क्यों किया, because I don't know where the tumor is. It could be anywhere. It could be in the forebrain, उसके हाइंड पैर में हो सकता था, उसके बैक में हो सकता था, लंग्स में, कहीं पे भी. So I whole body section. ठीक है, फिर मैं क्या करी, आई एम गोइंग टू एक्सपोज इट और डिप इट इनटू द फोटोग्राफिक इमल्शन. मैं उसे फोटोग्राफिक इमल्शन में जब करूंगी, रिमेंबर my radio labeled drug is gone and is bound to the tumor which is anywhere. तो वो जब वो रेडियो एक्टिव डी हो जाएगा, इट विल एमिट रेडिएशन, करेक्ट. फिर वो जाके हम लोग उसको फोटोग्राफिक इमल्शन में जब डिप करेंगे, एक्सपोज करेंगे, तो क्या होगा, वो जो रेडिएशन है इट इज गोइंग टू रिएक्ट विथ माय सिल्वर क्रिस्टल, करेक्ट. एक लैटेंट इमेज बनेगा वहां पर. ओके, फिर उस ऑर्गेनिज्म को, उस माइस को डेवलपर में डिप करूंगी, तो वहां पर क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट इज गोइंग टू रिड्यूस सिल्वर क्रिस्टल टू सिल्वर. ओके, एंड देन आई एम गोइंग टू डिप इट इनटू द पेपर, जहां पे भी वो सिल्वर, मेटालिक सिल्वर है, वहां पे वो फिक्स हो जाए. And then I'm going to observe it at the electron microscope. Okay, तो क्या होने वाला है, I can finally see that where exactly my radio labeled drug is gone and is bind. जहाँ पे ट्यूमर है वहीं जाके बाइंड होगा वो. Then I come to know कि अच्छा ट्यूमर यहाँ पर है. That's where we use autoradiography in vivo autoradiography. ठीक है. This is about a chromosome which is visually visualized by autoradiography. उन्होंने क्या किया है, जो क्रोमोसोम्स है, ठीक है, डीएनए सैंपल में उन्होंने क्या किया है, उसको मेटालिक सिल्वर फोटोग्राफिक इमेज को एक्सपोज कर पूरा डेवलपमेंट का प्रोसेस कर दिया, एंड दे हैव फाइनली ऑब्जर्व्ड इट अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. दिस इज योर क्रोमोसोम व्हिच व्हाट इट लुक्स लाइक. ठीक है, अबव इमेजेस बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन है ना. ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए सीक्वेंस सेगमेंट इज कन्वर्टेड टू एमआरएनए, बराबर. दैट इज व्हाट इट लुक्स लाइक. तो हियर द एमआरएनए इज रेडियोएक्टिवली लेबल्ड टिश्यू. ठीक है, इज इन विट्रो ऑटोरेडियोग्राफी. सैंपलिंग कैसा है, आइसोलेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स लाइक प्रोटीन्स, आरएनए, ठीक है, एक्सट्रैक्शन आइसोलेशन सब हम करेंगे. then we are going to do the labeling, है ना, रेडियो लेबल करेंगे, तो डीएनए को है तो आरएनए है तो प्रोटीन, जो भी हमारा सैंपल है. we are going to load the sample in a suitable matrix for image development. So when we talk about northern blotting, ये वो रेडियो लेबल प्रोटीन्स कैन बी लोडेड. प्रोटीन्स के लिए हम पेज करते हैं, है ना, पॉलीएक्रिलामाइड जेल लेते हैं. आफ्टर दैट ट्रांसफर इट टू द नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन. फिर उस मेम्ब्रेन को हम फोटोग्राफिक फिल्म डालते हैं. ठीक है, समझा जो मैं पहले बोल रही थी फिल्म के बारे में. इट कम्स व्हेन नॉर्दर्न साउदर्न ब्लॉटिंग करते हैं या इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तब वो फिल्म पिक्चर में आता है. तो आई एम गोइंग टू एक्सट्रैक्ट माय डीएनए सैंपल, आइसोलेट करूंगी उसको, रेडियो लेबल करूंगी, फिर मैं उसको जेल रन करूंगी, इलेक्ट्रोफोरेसिस करूंगी. उस जेल का जो स्लैब रहेगा, आई एम गोइंग टू ट्रांसफर दोस बैंड्स ऑनटू माय नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन.
ओके, एंड देन उस मेम्ब्रेन को मैं मेरे फिल्म पे डालूंगी, ठीक है। एक्सपोजर ऑफ द फोटोग्राफिक फिल्म टू द मेबर सैंपल, एक्सपोज कर दिया मेरे इस मेम्ब्रेन को फिल्म पर। एक्सपोजर टाइम अगेन डिपेंड्स ऑन द रेडियोआइसोटोप यूज्ड। Development of the autoradiographic image by immersing the film in a developer reagent, or same process रहता है, developer and fixative हम use करने वाले, okay, and then the resolution is proportional to the ionization capacity of the radioisotope. ये auto radiographic image का यहाँ पे मेरे जहाँ पर resolution रहेगा, it will be directly proportional to the radioisotope that I am using. मेरा radioisotope इतना आयनाइजिंग है उतना डार्क मुझे बैंड दिखेगा, ठीक है। लो isotopes only red neighboring silver halide molecules producing a very sharp image, while high energy isotopes will reduce a lot more halide molecules producing a darker image, lower specificity. इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने लो एनर्जी रेडियो आइसोटोप्स यूज किए तो वो क्या करेगा, उसके आजू जो सिल्वर के साथ वो रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर मेरा हाईली आयनाइजिंग रेडियो आइसोटोप मैंने यूज कर लिया आयोडाइड जैसा, तो वो रिएक्ट और रिएक्ट करके बहुत काला इमेज देगा, बट इट विल नॉट बी वेरी शार्प compared to as the one which is produced by low energy isotopes. Okay, this is what your auto read for begins looks, ठीक है। तो जो डॉट्स दिख रहे हैं they are, ठीक है, समझा यहाँ तक सबको? इन विवो इन विट्रो क्या करता है, किसी को कोई डाउट्स है क्या डाउट्स? सबको समझा? Yes, ma'am. कल मैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखने वाली हूँ, मैंने इनका भी रखा था पार्ट 1 का, तुम्हारा भी रखूंगी, कल समझ में आ जाएगा कितना किसको समझा है, ठीक है। ओके, applications, finally the applications part or the radiographic applications to determine the receptor distribution localization while studying neurodegenerative disorders. receptor proteins के बने हुए होते हैं, तो we are going to study कि exactly पर है, ठीक है, neurodegenerative disorders। यहाँ पे हम normally in order यूज करेंगे, in others or the sequence of interest भी देखा था हमने in vitro order radiography में। Radiopharmaceutical research for the evaluation of positron emitting and gamma emitting radiopharmaceuticals. Radiopharmaceuticals is an upcoming और popular field, ठीक है। Research where they're going to use whole body autoradiography and microorography. In vivo radiography techniques are used to determine the distribution of radiolabeled compounds in lab animals. जो देखा था वो PET है, positron emission topography, which is a diagnostic imaging method. PET scan is used to observe the processes happening in, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, a radioisotope is coupled with a radiotracer, ठीक है, and it is introduced in the body, या तो इंजेक्शन इनहेलेट करा देंगे बॉडी को, फिर जो रेडियोएक्टिव डीके होगा, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं उसमें, we're going to trace it, ठीक है। when a positron right, they annihilate each other and gamma which are detected by a gamma camera. Proteins, lipids, sugars and even patient cells can be used radioactive tracers, ठीक है। For example, to determine the source of internal bleeding in a patient, it is very much possible to radiolabel the patient's red blood cells and inject them back in the body and then follow the accumulation of radioactivity in a specific part of the body using a PET scan. It is very self-explanatory, ठीक है, कि PET में भी हम लोग यूज कर सकते हैं ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। आई थिंक द सेशन एंड्स हियर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स है?
Anybody having any doubts? Ma'am, हाँ बोलो शीतल. in vitro autoradiography, you told that there are isotopes with higher radiations will give dark images, uh, the other with isotopes like of isotopes of hydrogen will give क्या बोलते हैं light. So which out of these two, which we will use for in vitro autoradiography? I No, want to no. ask that. See, radioisotopes, low energy radioisotopes. See, this is the screen दिख रहा है ना? This slide. Okay. See, this point right here. Okay. ये वाला. Low energy radioisotopes जो होते हैं ना, they are going to reduce only the neighboring silver halide molecules. यानी कि अगर मेरा जो रेडियो एक्टिव सैंपल है, ठीक है, ये मेरा सैंपल है, इसके आजू बाजू सब जगह सिल्वर हैलाइड है, बराबर, ऊपर नीचे Yes. आसपास में. तो अगर आई एम यूजिंग लो एनर्जी रेडियो आइसोटोप्स, वो सिर्फ यहाँ एकदम आसपास वालों के ही सिल्वर मॉलिक्यूल, सिल्वर क्रिस्टल्स के साथ वो रिएक्ट करने वाला है, ठीक है. वो इधर वाले जो है उनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा. Okay, and it is going to produce a dark image and a very sharp image. ठीक है. तो अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल मेरा बैंड है, ठीक है, डीएनए का बैंड है, अगर बैंड यहाँ पर है तो आई विल गेट अ डार्क इमेज ओनली हियर, यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है. बट इफ आई एम गोइंग टू यूज अ वेरी हाई एनर्जी रेडियो एक्टिव आइसोटोप, तो वो क्या करने वाला है, इट विल रिएक्ट विद द सिल्वर क्रिस्टल्स दैट आर इवन हियर. यहाँ पे तो करेगा ही, बट सिंस इट इज हाईली आयनाइजिंग, वो यहाँ पे भी जाके रिएक्ट करेगा. तो डार्क इमेज, ये पूरी मेरी डार्क इमेज हो. इट विल नॉट बी वेरी रिजॉल्व्ड, रेजोल्यूशन अच्छा नहीं रहेगा. ओके. अभी फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो बैंड दिख रहा है, oh God, ठीक है, वो वाला छोड़ दो. ये वाला जो बैंड दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे हाई एनर्जी रेडियो आइसोटोप यूज किया होता, हाई एनर्जी मतलब ज्यादा आयनाइजेशन, ज्यादा रेडिएशन, ज्यादा आयनाइजेशन, तो मुझे यहाँ पे भी एकदम डार्क डार्क दिख जाता, ठीक है. बट सिंस आई एम यूजिंग अ लो एनर्जी रेडियो आइसोटोप, मतलब इट विल बी वेरी आयनाइजिंग, बट वो दूर तक के क्रिस्टल्स के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ आजू बाजू के क्रिस्टल्स के साथ रिएक्ट करके मुझे शार्प बैंड देगा, ठीक है. अब समझा? यस मैम. सो मैम वो सैंपल पे डिपेंड करेगा क्या हमें कौन सा वाला यूज करना है? रेडियो आइसोटोप हमें हमें हमारे रिजल्ट्स पे एक्चुअली वो डिपेंड करना चाहिए कि मुझे बहुत ही हाईली रिजॉल्व ऑटो रेडियोग्राम चाहिए या कैसा ऑटो रेडियोग्राम चाहिए. अगर मुझे सिर्फ क्वालिटेटिवली जानना है कि अच्छा यहाँ है, तो आई कैन जस्ट यूज अ नॉर्मल हाई एनर्जी रेडियो आइसोटोप. बट आई वांटेड टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड मुझे बहुत ही शार्प रेजोल्यूशन वाला चाहिए, आई विल रादर गो विद अ लो एनर्जी रेडियो आइसोटोप. नॉर्मली लो एनर्जी रेडियो आइसोटोप ही यूज करते हैं, ठीक है, बिकॉज कोई भी टाइम पास के लिए या ऐसे दिखने के लिए ऑटोलिथोग्राफी नहीं करेगा. Since we are dealing with radiation and radioactive tracers, ultimately they are going to get exposed. So it would be rather very quantitative assay के लिए होगा. We'll always go with low energy radioisotopes rather than going for high energy radioisotopes. Okay, ma'am. Hopefully it clears your doubt. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ओके. और किसी को कुछ डाउट्स है? केतन समझा तुमको? यस मैम. और कौन है? दर्शना, सुमिधा, मुसरत लेट आई थी तो तुमको समझा है? होपफुली समझा है, तो मुझे कल समझ में आ जाएगा वैसे भी. तो टुमारो वी आर गोइंग टू हैव अ Q&A सेशन, ठीक है, तो प्लीज रिवाइज.
तुम लोग ने सब्सक्राइब किया है कि नहीं यूट्यूब, हमारा यूट्यूब चैनल, मुझे पता नहीं, बट नहीं किया है तो प्लीज डू सो, क्योंकि मैंने वहाँ पे रेडियो ट्रेसर्स के दो लेक्चर्स अटेंड अपलोड किए हुए हैं। आई एम गोइंग टू अपलोड टुडेज लेक्चर एज वेल। जितने भी हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स हुए हैं, अपलोडिंग इट ऑन यूट्यूब, ठीक है, चैनल पे। तो अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। एंड कल Q&A सेशन होगा तो रिवाइज करके आना, ठीक है। सिंस वी आर ऑलमोस्ट कमिंग टू द एंड ऑफ द यूनिट, थोड़ा Q&A एंड डिस्कशन जैसा कुछ होना चाहिए। सो टुमारोज लेक्चर वुड बी अबाउट दैट, ठीक है। एंड वी आल्सो स्टार्ट विद रेडियो लेबल्ड प्रोब्स और समथिंग, ठीक है। तो हमारे मेजरमेंट एंड डिटेक्शन टेक्निक्स आर डन, ठीक है। तीन ही टेक्निक्स थे, ठीक है। तो अपन अभी कल मिलेंगे, कल अपन कॉलेज में मिलेंगे, ठीक है। नो, आई एम नॉट सेंडिंग द पीपीटी नाउ बिकॉज माई यूनिट इज नॉट येट डन। प्लीज रेफर द वीडियोज, यूट्यूब वीडियोज रेफर करो, वहां पे मैंने एवरी टाइम आई स्टार्ट अ लेक्चर मैं पीछे का रिवाइज करती हूँ। सो रेफर द यूट्यूब वीडियोज, बिकॉज इफ आई सेंड द पीपीटी नाउ मुझे फिर से पीपीटी तुम लोग को भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो आई रादर सेंड इट एट द एंड ऑफ द यूनिट ओनली। रेफर द वीडियोज, ठीक है। एंड कल मिलते हैं अपन, ओके। चलो फिर अभी जाओ, चलो बाय।